Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present 25th video on the provisions of Constitution of India. In this lecture, I will discuss the provisions related to public service commissions in India, provided in part 14, chapter 2 of the Constitution of India, and the provisions laid down under Article 315 to 323. मित्रों, भारतीय संविधान के प्रावधानों पर इस 25वें वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अधीन विभिन्न लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 अनुच्छेद 315 से 323 तक में प्रावधानित है। इनको पढ़ने से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आयोग हैं, लोक सेवा आयोग हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर मोर देन 2 स्टेट्स और 1 स्टेट, either for 2 or more than 2 states, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर एवरी स्टेट। संघ के सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग, 2 या अधिक से राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, और हर एक राज्य के लिए, जहां ये नहीं है वहां प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। ओके, I will describe the provisions on the commissions through this chart. Okay, according to Article 315, there shall be public service commission for union and state service commission for each state. भारत के संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और सभी राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। बट इन क्लास 2, 315 clause 1, 315 clause 1, Article 315 clause 1 provides the need of Union Public Service Commission and need of State Public Service Commission for each state. अनुच्छेद 315(1) में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, यहीं पर राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है। बट क्लास 2 provides joint public service commission. Okay, 2 or more states may agree that there shall be one public service commission for that group of states, and if a resolution to that effect is passed by the house, or where there are 2 houses by each house of the legislature of those states, parliament may by law, underline it, underline Article 315 clause 2. What should be underlined? Parliament may by law provide for the appointment of a joint state public service commission, referred to in this chapter as joint commission, to serve the needs of those states. संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए स्थापना का काम कौन करेगा? संसद विधि बनाकर करेगी। किन राज्यों के लिए? जिन राज्यों के विधानमंडल संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए प्रस्ताव पास करते उन राज्यों के लिए। फिर से समझिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन करेगा? संसद विधि द्वारा, जबकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना संविधान के लिए है। ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन and state public service commissions are established according to provisions of Constitution, while joint public service commission may be established by law of Parliament. ठीक है? Now, chairman and members are appointed. Appointment of chairman and members. Okay? Appointment of chairman and members. In case of Union Public Service Commission, by President. Okay? In case of Joint Public Service Commission, by President. But in case of State Public Service Commission, by Governor. संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति, किंतु राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। Okay, under Article 360, the qualification to be appointed as member, any person
appointed as member of any public service commission must have 10 years experience of government job. ओके, कम से कम 10 वर्ष तक का उसे अनुभव होना चाहिए, एट लीस्ट 10 years एक्सपीरियंस. Term of office and retirement is, in case of public service commission, union public service commission, 6 years, 6 years, 6 years. Okay, but a retirement age is different. In case of union public service commission, 65 years. But in case of joint public service commission and state public service commission, this is 62 years and 62 years. सभी का कार्यकाल 6 वर्ष है, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हों, चाहे वह संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हों, चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हों, सबका कार्यकाल 6 वर्ष है. किंतु उनकी सेवानिवृत्ति की आयु संघ लोक सेवा आयोग के दिशा में 65 वर्ष, किंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के दिशा में 62 वर्ष है. इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 316 क्लास 2, आर्टिकल 316 क्लास 2, अनुच्छेद 316 खंड 2 में लिखा हुआ. बट दे मे रिजाइन टू, इन केस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, टू द प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू द प्रेसिडेंट, बट इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू द गवर्नर. ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय स्व हस्ताक्षरित अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य गवर्नर को इस्तीफा देंगे, राज्यपाल को इस्तीफा देंगे. ठीक है, दे मे बी रिमूव्ड on misbehavior after an inquiry by Supreme Court, by president. It means chairman and members of any public service commission, either of union public service commission or of joint public service commission or state public service commission, can be removed only by the President of India, generally after an inquiry conducted by Honorable Supreme Court and only on the ground of misbehavior. केवल कदाचार के आधार पर, जिसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाने के बाद जब रिपोर्ट दी जाएगी, तभी केवल राष्ट्रपति, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य हो, को पद मुक्त कर सकता है, पदच्युत कर सकता है अपने आदेश द्वारा, बाय एन ऑर्डर. ओके, बट he may, the President of India may remove them without an inquiry, without any such inquiry conducted by Supreme Court in any of the 3 cases. If a chairman or member is declared adjudicated insolvent, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए, और he engages any paid employment outside his office, अगर वो अपने कार्यालय से बाहर किसी वैतनिक सेवा में शामिल हो जाए, और he becomes physically or mentally unfit in opinion of the President of India, या वह राष्ट्रपति की राय में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने पद पर रहने के अयोग्य हो जाए. In these 3 situations, the President of India can remove chairman or member of any public service commission without any inquiry. Okay, but on the ground of misbehavior, he cannot remove, the President of India cannot remove them or any of them unless an inquiry conducted by the Supreme Court under Article 145 and a report is submitted to the President that the chairman or member who is to be removed by the President is liable of misbehavior. जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके कदाचारी होने का, आरोप सही होने का की रिपोर्ट जांच के बाद राष्ट्रपति को न दे दे, तब तक राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता. ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, द चेयरमैन और मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी सस्पेंडेड in case of union public service commission by president, in case of
may be suspended. Okay, may be suspended by President of India in case of Union Public Service Commission, by the President of India in case of Joint Public Service Commission, in case of State Public Service Commission by Governor. ठीक है, जब तक यह जांच सुप्रीम कोर्ट की जांच चलती रहेगी तब तक उसे निलंबित किया जा सकेगा संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की दिशा में राष्ट्रपति के द्वारा, किंतु राज्य लोक सेवा आयोग की दिशा में राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, उसे हटाया जा सकेगा। यह निलंबित किया जा सकेगा कहां लिखा हुआ है? अंडर आर्टिकल 317 क्लास 2, अंडर आर्टिकल 317 क्लास 2, अंडर आर्टिकल 317 क्लास 1 एंड विदाउट एनी इंक्वायरी अंडर आर्टिकल 317 क्लास 3, अनुच्छेद 317 3 में 3 ग्राउंड लिखे जहां की इंक्वायरी नहीं की जाएगी। जो इंक्वायरी पे हटाया जाएगा 317 खंड 1 है और जो सस्पेंशन की बात है 317 खंड 2 है। क्लास 4 एक क्लैरिफिकेशन है, इफ द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर बी इन एनी वे कंसर्न्ड are interested in any contract or agreement made by or on behalf of the government of India or the government of a state, or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member of and in common with the other members of an incorporated company, he shall for the purposes of clause 1 be deemed to be guilty of misbehavior. यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा उस संविदा या करार से जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे और उपलब्धि में भाग लेता है तो उसे अनुच्छेद 317 खंड 1 के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी माना जाएगा। ओके, नाउ prohibition on holding office after retirement. The chairman and members of public service commissions are prohibited to hold new office under any government after retirement. सेवानिवृत्ति के बाद ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को सरकार के अधीन अन्य पद धारण करने पर रोक लगाई गई है। ये रोक कहां है? This is under Article 390. In case of Public Service Commission, under Article 319 clause A and B, in case of Joint Public Service Commission or State Public Service Commission, under Article 319 C and D, under Article 319 C and D. ठीक है, 319 दिशा में A और B में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की दिशा में 319 को, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की दिशा में 319 ख में, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की दिशा में 319 ग और सदस्यों की दिशा में 319 घ में यह प्रतिबंध लगा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 319A, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस after his retirement. The chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the government of India or under the government of state. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायर होने के बाद संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद के लायक नहीं होगा, कोई भी पद धारण नहीं करेगा। Reading the provisions of Article 319, we should read Article 316 Clause 3. अनुच्छेद 319 पढ़ते समय 316 खंड 3 भी पढ़ना चाहिए। A person who holds office as a member of a public service commission shall, on the expiration of his term of office, be ineligible for reappointment to that office. कोई भी व्यक्ति जो किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वह दोबारा उस लोक सेवा आयोग या किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने के पात्र नहीं होगा, उस लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने के पात्र नहीं होगा। अन्य लोक सेवा आयोग में सदस्य हो सकता है। कैसे? अगर
संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में है तो वह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, किंतु अगर इनमें है तो यहां वह सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल 319A में क्या लिखा हुआ, सॉरी बी में क्या लिखा है। सॉरी, देयर इज मिस्टेक। 319A and for member C, 319B and C, D. Okay, for chairmen B, A and B for chairmen, C and D for members. Okay, so then members of Union Public Service Commission. Okay, a member other than the chairman of Union Public Service Commission shall be eligible for appointment as the chairman of the Union Public Service Commission or as the chairman of State Public Service Commission, but not for any other employment either under the government of India or under the government of state. संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्य सरकार या संघ सरकार के दिन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद, केवल वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, किंतु सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा। लाइक चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लॉज बी, the chairman of state public service commission shall be eligible for appointment as the chairman or any other member of the union public service commission or as the chairman of any other state public service commission, but not for any other employment either under the government of India or under the government of state. राज्य लोक सेवा आयोग ही यहां लिखा हुआ है, बेसिकली यहां कुछ लिखा नहीं है। ओके, बट ये यहां पे प्रोविजंस लागू होंगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का या क्या अध्यक्ष हो सकते हैं, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं, या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर भी हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, किंतु अन्य किसी सेवा में संघ या राज्य सरकार के नहीं हो सकते। नाउ कम ऑन द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, Clause D. A member other than the chairman of a state public service commission shall be eligible for appointment as the chairman or any other member of the Union Public Service Commission. Okay? तो इनका जो members हैं वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है। Okay? Or as the chairman of that or any other state public service commission, या उसी लोक सेवा आयोग का जिसमें वह सदस्य है उसका अध्यक्ष बन सकता है, या किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, नाउ इसके अलावा किसी संघ सरकार के किसी सेवा के अधीन और किसी राज्य सरकार की किसी सेवा के अधीन नहीं हो सकता। ओके, दिस प्रोविजंस हैव बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 319। ओके, बट we should read proviso of article 380 here. हम लोगों को यहां अनुच्छेद 318 का परंतु भी पढ़ना चाहिए। It provides as that the conditions of service of a member of a public service commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment, except financial emergency under article 360 of Constitution. लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिवाय अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रीय आपात के। नाउ कम ऑन द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैव बीन लेट डाउन अंडर आर्टिकल 320 क्लॉज 1, 2 and 3, while functions of other public service commissions have been laid down under article 320 clause 1 and clause 3. It means clause 1 and 3 are common functions for all commissions, but clause 2 provides specific function of Union Public Service Commission. ठीक है, लोक सेवा आयोगों के कृत्य अनुच्छेद 320 में लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 320 के खंड 1, 2 और 3 में, खंड 1 और 3 में
सभी प्रकार के लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य लिखे गए हैं, जबकि खंड 2 में केवल संघ लोक सेवा आयोग का विशेष कार्य लिखा हुआ है। सो आई वुड लाइक टू रीड फर्स्ट क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 320 द स्पेशल फंक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग का जो विशेष कार्य है, जो अनुच्छेद 320 के खंड 2 में लिखा हुआ है, उसे पढ़ना चाहूंगा। इट इज एज it shall also be the duty of the Union Public Service Commission, if requested by any 2 or more states so to do, to assist those states in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualification are required. यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह किसी सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें। Here I would like to inform you that generally questions are asked from Article 320 in preliminary examinations and several times in mains examination, but never in several times in interview, but never in mains examinations. अनुच्छेद 320 से प्रायः प्रारंभिक परीक्षा में और कभी कभी साक्षात्कार में प्रश्न आते हैं, बट कभी भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं। सो यू हैव टू रीड केयरफुली जस्ट आर्टिकल 320। अनुच्छेद 320 को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है एंड यू हैव टू मेमोराइज द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस प्रोवाइडेड इन क्लासेस 1, 2, 3 ऑफ आर्टिकल 320। अनुच्छेद 320 के खंड 1, 2 और 3 में जो प्रावधानित है कर्तव्य, उन कर्तव्यों को पढ़िए और दिमाग में बैठा लीजिए। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। अंडर क्लास 1 द कॉमन ड्यूटी ऑफ ऑल commissions, it shall be the duty of the union and the state public service commission to conduct examination for appointments to the services of the union and the services of the state respectively. संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी यह कर्तव्य होगा कि जिन राज्यों के लिए वह संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उन राज्यों के लिए लोक सेवा परीक्षाओं का संचालन करें। अंडर क्लास 1। अंडर क्लास 3 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज द केस में बी शैल बी कंसल्टेड, परामर्शदात्री कर्तव्य। ओके, इनसे परामर्श लिया जाएगा, लिया जा सकेगा, किया जाएगा। शैल बी कंसल्टेड, अंडरलाइन इट, अंडरलाइन शैल बी कंसल्टेड, इनसे परामर्श लिया ही जाएगा। ओके, दे शैल बी कंसल्टेड, यानी यहां परामर्श लिया जाना है इन विषयों पर। अनुच्छेद 320 खंड 3 में उल्लिखित 5 विषयों पर A, B, C, D, E on any of the 5 matters it is mandatory for the authorities to consult with the public service commissions. ओके, लिखे हुए 5 विषयों पर, जो अनुच्छेद 320 खंड 3 में 5 विभिन्न विषय उल्लिखित हैं, उनमें से किसी भी विषय पर कार्य करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के लिए अनिवार्य है, संवैधानिक बाध्यता है कि वह लोक सेवा आयोग से परामर्श करे। ओके, and it shall be duty of the public service commission to refer his opinion on the matter to the President of India in case of public service commission or joint public service commission, and to the governor of the state in case of state public service commission. So there are both are mandatory. Consultation is mandatory and giving the opinion is mandatory. Both is mandatory. ठीक है, दोनों ही बाध्यकारी है। परामर्श किया जाना, परामर्श दिया जाना, दोनों ही बाध्यकारी है। ओके, सो द मैटर्स अपॉन विच कंसल्टेशन इज मैंडेटरी और एज, जिन विषयों पर परामर्श बाध्यकर वे इस प्रकार है।
एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट्स, सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श किया जाएगा। सेकेंड बी, on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another, and on the suitability of candidates for such appointments, promotions and transfers। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर, उनकी योग्यता पर परामर्श किया जाएगा। The third point is on disciplinary matters affecting a person serving under the government of India or the government of a state in a civil capacity, including memorials or petition relating to such matters। ठीक है, ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन और याचिकाएं भी आती हैं, पर संबंधित लोक सेवा आयोग से परामर्श अवश्य किया जाएगा। और क्लॉज 4th डी, on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the government of India or the government of a state or under the crown in India or under the government of an Indian state in a civil capacity, that any costs incurred by him in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duties should be paid out of the consolidated fund of India, or as the case may be out of the consolidated fund of the state। ऐसे व्यक्ति, सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने वाले तात्पर्य कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा किया गया खर्च उपगत खर्च का यथास्थिति भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए। यदि यह प्रश्न आता है कभी शासन के सामने तो इस पर लोक सेवा आयोग से परामर्श अवश्य किया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट अपॉन व्हिच कंसल्टेशन इज मैंडेटरी इज on any claim for the award of pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the government of India or the government of a state or under the crown in India or under the government of an Indian state in a civil capacity, and any question as to the amount of any such award। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन निर्णित किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनियम की रकम विषयक प्रश्न पर संबंधित लोक सेवा आयोग से परामर्श अवश्य किया जाएगा। एंड और इस प्रकार उसे यानी लोक सेवा आयोग को निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर जिसे यथास्थिति राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उस लोक सेवा आयोग को निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा। And it shall be the duty of the Public Service Commission to advise on any matter so refer to them, and on any other matter which the president or as the case may be the governor of the state may refer to them। ठीक है, जब कभी परामर्श मांगा जाएगा तो परामर्श देने की उनकी बाध्यता है। But clause 4 is very important here. Nothing in clause 3 shall require a Public Service Commission to be consulted as respects the manner in which any provisions referred to in clause 4 of Article 16 may be made, or as respects the manner in which effect may be given to the provisions of Article 335. It means manner of reservation shall not be consulted to the Public Service Commission। आरक्षण के विषय पर
अनुच्छेद 16 खंड 4 में जो लोक सेवाओं के अधीन आरक्षण है, या अनुच्छेद 335 में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके तौर तरीके पर लोक सेवा आयोगों से परामर्श करने का कोई बाध्यता नहीं है। ये खंड 4 में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपाल से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को निर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा जिनमें साधारणतया या किसी वर्ग के विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट may make rules in any particular circumstances or in any particular class of case where no requirement of consultation with Public Service Commission. It has been provided in proviso of class 3, but it should be read with class 5 of article 320. Class 5. All regulations, rules made under the proviso to class 3 by the President of India or the Governor of a state shall be laid for not less than 14 days, underline it, 14 days, just after making the regulation, within 14 days, before each house of parliament or the house or each house of the legislature of the state, as the case may be, as soon as possible after they are made, and shall be subject to such modification whether by way of repeal or amendment, as both houses of parliament or the house or both houses of the legislature of the state may make during the session in which they are so late. राष्ट्रपति या राज्यपाल किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष पदों पर लोक सेवा आयोग से चर्चा न करने का विनियमन बना सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया विनियमन उसके बनाए जाने के 14 दिनों के भीतर ही सदन में रखा जाएगा। संसद के सामने राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने की अवस्था में, राज्य विधानमंडल के सामने राज्यपाल द्वारा बनाए जाने की अवस्था में, और संसद या राज्य विधानमंडल उसका निरसन या संशोधन करके जिस प्रकार से उसे रूप देगी उस प्रकार से विनियमन प्रभावी होगा। ओके, नाउ रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट एवरी ईयर पार्लियामेंट में प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, it shall be duty of Union Public Service Commission to yearly report to the President of India, and the President of India, the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining as respects the cases, if any, whether the advice of the commissions was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each house of parliament. ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को प्राप्त होने पर जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार की गई, जिनमें आयोग की सलाह नहीं स्वीकार की गई तो क्यों नहीं स्वीकार की गई, इन कारणों के साथ संसद में रखवाएगा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। लाइक अदर कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जितने कमीशन हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाती है। इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, द रिपोर्ट शैल बी गिवन टू द गवर्नर एंड सेम प्रोसेस शैल बी अप्लाइड बाय द गवर्नर। ओके, द रिपोर्ट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी लेड डाउन बिफोर द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में। ठीक है, ठीक वही प्रक्रिया गवर्नर के द्वारा फॉलो की जाएगी अंडर आर्टिकल 323 क्लास 2। ओके, द अदर प्रोविजंस आर एज आर्टिकल 318 अनुच्छेद 318 पढ़ लिया जाए एक बार। इन द केस ऑफ द यूनियन कमीशन और अ ज्वाइंट कमीशन द प्रेसिडेंट, एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन द गवर्नर और द स्टेट of the state may by regulation determine the number of members of the commission and their conditions of service। संघ लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा की दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा की दशा में राज्यपाल यह तय कर सकेगा कि आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी। एंड
मेक प्रोविजंस with respect to the number of members of the staff of the commission and their conditions of service. ओके और आयोग के में कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी और उनकी सेवा शर्तें आदि क्या होगी। तो इस प्रकार आपने लोक सेवा आयोग को पढ़ लिया, जो भारत के संविधान के तमाम गौण साधनों में से एक है। ओके, थैंक यू।